Good morning, students of class 9C. Today I will discuss about the force, effects of force, point of application, line of action of force, graphical representation of force. So these are the topic related to this video, and I will discuss about these terms or topics one by one. So first of all, I want to discuss about the force. In some books, only given the push and pull is called force, but it is not the good definition, right? पुश मीन्स हुआ धक्का देना हुआ, राइट? जैसे ये मान लो है, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दैट इज पुशिंग, और दैट इज पुलिंग. तो पुश एंड पुल इज द force, इज नॉट द complete definition of the force. Here I write the complete definition of force. Force is a push or pull. Force is a push and pull, है ना? Push and pull है, no doubt, which changes their effects, changes or tends to change, changes or tends to change, right? चेंज करता है या चेंज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. यहाँ देखिए रेस्ट है, और द यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन, मोशन, डायरेक्शन, शेप, साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, राइट? अगर हम ये पुश और पुल, दैट इज फोर्स, राइट? Because pushing and pulling arises due to the interaction of the two bodies. For example, it is my hands and that is the pen. So these two bodies interact with each other, then a force arises in between them, or by pushing or by pulling, right? Then force is produced. But that force is known by their effects. What effects may be occur when you apply force? तो that change or tends to change. Tends मतलब होता है ऐसा करने का, वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, राइट? tends to change तो हो भी सकता है, जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड है, and when you apply some force on this board, there is no any change in the position of this board, right? But when apply force on that pen, what happens? They change their states. That state is changed not by own, right? When I apply some force on that, then the position of that pen is changed, right? But if a very little amount of force applied on that, then what happens? That will be not changed, right? So the amount of force also had vital role, or which decides the object will, the position of object tends to change or not change. But one thing is clear, that the force always tends to change the states of the object or the body, right? Now what will be the position of states? That means rest. हो सकता है विराम में हो, रेस्ट मतलब होता है विराम, एट रेस्ट, राइट? एट स्टेशनरी स्टेट्स, और यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हो. अब यूनिफॉर्म मोशन में अगर बात समझो इसको भी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए मूव कर रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि चेंज का मतलब हुआ बढ़ाना. अगर फोर्स इस दिशा में लगेगा और इसी दिशा में मूव कर रहा है, क्या होगा? इसका स्पीड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा. बट व्हेन द फोर्स अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन and the motion of that is in this direction, in that case what happens? Again the velocity will be changed, right? But here the decrease the velocity decrease करेगा, और in this case what होगा? Increase करेगा, right? तो चेंज का सेंस दोनों है, आपका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. That depends upon the in which direction the force applied, is in direction of motion or in opposite direction of motion.
If the force applied in the same direction of motion, right, then it accelerates the objects, right? But when the body is in uniform motion and the force applied in opposite direction, in that case the body will be decelerates. That means the velocity of the body reduce or slow down. ओके, अब देखिए इसके बाद है डायरेक्शन. मान लीजिए कि जैसे आप साइकिल मूव करते हो, अब क्या करते हो उसमें आप हैंडल से उसको ट्विस्ट कर देते हो, तो क्या डायरेक्शन का चेंज हो जाता है. या मान लो कोई बॉलिंग कर रहा है इस तरह से, ठीक है, तो बॉल डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द बैट्स, और बैट में डिफरेंट एंगल पर स्ट्राइक करके क्या पाते हैं आप कि बॉल जो है कभी पीछे चला जाता है, कभी राइट साइड, कहीं लेफ्ट साइड, कभी एकदम जिस बाउंस बैक हो जाता है, जिधर से आता है उधर ही चला जाता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द बैट्समैन, राइट, और टेंडेंसी ऑफ द बैट्समैन, है ना, इन व्हाट एंगल द बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल. ऑन दैट फैक्ट्स, ऑन दैट फोर्स, the direction of the motion of the ball depends. So by the application of the force, we can also change the direction of the motion of the body or object. Besides that, you can also change the shape and size of the objects, right? मान लो एक रबर बॉल है, राइट, रबर बॉल है, या मान लो कोई ब्लेड है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आप फोर्स को लगा करके उसके पोजीशन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट. जैसे मान लो ये बॉल है, राइट, इसमें तो पूरा स्फेरिकल है, अब देखो ऐसे कर दिया, पता चल रहा है. बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स यू कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉल, नो डाउट. अब अगर ये रबड़ का होता क्या होता, खींच ऐसे करते तो वैसे हो गया, और खींच देते क्या होता, टेंशनाइज हो जाता, तो बढ़ जाता है इसका. ब्रेक होता चेंज कर देते. ये जो बात एक चीज और जान लो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं फोर्स लगाया, ये देखो ये क्या था, स्फेरिकल था, अब ये स्फेरिकल रहा नहीं रहा, है ना, ये स्फेरिकल नहीं रहा, पैराबोलिकल कर सकते हो, अंडाकार कर सकते हो, इस तरह से हो गया, राइट, एक क्या शेप के तरह हो गया. तो बाय द जिसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स. ये भी जान लीजिए, इसका स्पेशल नाम क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग. अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है सो समझो. फॉर्म मतलब होता है रूप, तो विरूपक बल, इसको बोलते हैं विरूपक बल, विरूपक बल. वैसा बल और वैसा फोर्स जो क्या है उसके रूप को परिवर्तित कर दे, दैट इज कॉल्ड विरूपक, राइट. द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इज टर्म एज डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं. ये हो गया क्लियर. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसी केस में आपको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स भी क्लियर हो जाना चाहिए कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट स्टेट्स मे बी रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो पहला इफेक्ट ये हो गया. दूसरा, बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और यू कैन से दैट in other words force is such type of physical tools by which you can change the motion of the body, right, or by the application of force you can increase or decrease the motion of the body. Okay, by the application of force you can change, can लगा रहे हैं हम, याद रखें, ध्यान रखें, can change the direction of the moving objects. And besides these effects, that is by the application of deforming force you can change the shape and size of the objects, right. तो ये टॉपिक में आपका कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया. अब हम आपको बताएंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान मार कीजिए, ये आपको ध्यान में आना चाहिए. देखो ये है, राइट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं फोर्स, और तो मूव कर रहा है, राइट. तो यह जो पॉइंट हुआ यहाँ, जिस पॉइंट पे हम इससे फोर्स लगा रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट. जैसे मान लो हम ये बना लेते हैं, यहाँ पे ये आपका पेपर वेट था, रेक्टेंगुलर था, और यहाँ पे हम फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं, सीधा नहीं लगा रहे हैं, मान लो इसे लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट. तो ये जो पॉइंट ओ हुआ, राइट,
दैट इज फोर्स, और दैट इज क्या, ऑब्जेक्ट और बॉडी, राइट. तो आई अप्लाई फोर्स ऑन दैट पॉइंट. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. अब कहोगे सर समझ गए, चलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ गए सर, कि जिस पॉइंट पे लगाएंगे, जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ फोर्स लग रहा है, राइट. तो यहाँ तुम दिखा रहे हैं कि ऐसे फोर्स है ना, हम मान लो किसी तरह से फोर्स लगा रहे हैं, किसी तरह फोर्स लग रहा है. तो अब ये जो फोर्स हुआ, ये फोर्स F, और यहाँ पे जो मान लो लग रहा है फोर्स, समझ करो, है ना. ऐसा होता है कभी कभी कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कभी नहीं भी रहता है. तो अगर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जैसे एक्सटर्नल डिस्टेंस फोर्स आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो मान लो यहाँ से फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट. एक बात गौर करने की है कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स होगा वो हमेशा कहाँ होगा, बॉडी पर होगा, राइट. बॉडी से दूर नहीं होगा, ऑन द बॉडी, राइट. जैसे ये बॉडी था, ये बॉडी था, तो ये बॉडी के पास, ये ऊपर होगा, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, टच होगा. यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हो गया. और अब हम ऐसे दिखाते हैं, मान लो यहाँ पे लग रहा था, ये पॉइंट ऑफ एक्शन वो है. अब कहोगे सर कैसे दिखाएंगे, तो ये अब देखो इस तरह से ये लाइन खींच दिया, राइट. इमेजिनरी लाइन है, और ये मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ से, तो क्या होगा, इस लाइन को लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट. तो वह पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया. अब आपको बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, है ना. तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप लोग जानते हैं, है ना. डिनोटेड बाय इस तरह से कर सकते हो, राइट. अब देखो यहीं पे आ गया बात, वेक्टर अगर बताए थे, जब वेक्टर पढ़ा रहे थे उसमें बताया था आपको कि वेक्टर कैसे, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं ग्राफिकली, है ना. तो वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एरो हेड. वेक्टर क्वांटिटी is represented by a line segment with arrow head. देख स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दें, लाइन सेगमेंट और विथ एरो हेड, राइट. क्या मतलब हुआ इसका, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड में 2 इन पॉइंट होता है, ये हुआ, दूसरा इन पॉइंट ये हुआ, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ये क्या हुआ, ये हुआ लाइन सेगमेंट. और ये क्या है, लगा दिया हेड, क्योंकि एरो हेड, राइट. तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एरो हेड. इस नॉलेज से आप बोल सकते हो, यू कैन रिप्रेजेंट ए फोर्स graphically by line segment with arrow head. So force can be represented by a line segment with arrow head. अब देखिए इसका क्या मीनिंग है, लाइन सेगमेंट विद एरो हेड. और लाइन सेगमेंट क्या बताएगा, लाइन सेगमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगा. लाइन सेगमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट लिख देते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. एंड एरो हेड denotes the direction
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। अगर मान लो कोई बोले सर एक 5 न्यूटन का फोर्स है और ईस्ट डायरेक्शन लग रहा है, और दूसरा 10 न्यूटन का है और वो भी ईस्ट में डायरेक्शन लग रहा है, तो नो डाउट अगर ये 5 न्यूटन के लिए 9 सेमी का लेंथ ये है तो 10 के लिए ये होगा अप्रोक्स, राइट। ये हो जाएगा 10 न्यूटन, और इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट लिख देंगे, इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट लिख देंगे, एरो लगा देंगे, राइट। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं, मान लो नॉर्थ है तो नॉर्थ ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखने में असुविधा होगी, तो ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, जैसे मान लो ये भी 5 न्यूटन है, नॉर्थ है, तो आप से लिख सकते हो 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, है ना, और 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट लिखना है। मान लो कोई ऐसे डायरेक्शन है, इस तरह से ईस्ट हुआ और ये नॉर्थ हुआ, राइट। ऐसे केसेज में आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ये है ना, तो एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ इधर, तो ये एंगल हो जाएगा, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ इधर हो जाएगा, तो ई एन हो जाएगा 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से का मतलब होगा यहाँ, ऐसे लिख सकते हो, या इधर से लिख सकते हो, इधर से लिखोगे तो होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 डिग्री ईस्ट मैंने टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से, तो नॉर्थ होगा रेफरेंस पॉइंट। इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता चुका था पहले भी, जब पढ़ा रहे थे मोशन चैप्टर, तब उसको एक बार और देख लीजिएगा, ओके। फिर आगे आपको हम बताएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ये टाइप ऑफ फोर्सेस, और इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन अनदर वीडियोज।